Today I am going to discuss about the new topic of data file handling. Just you already familiar about the data file handling, how we handle on this data, what is the importance of the data file handling. As you know, today we talk about the CSV file model. At first we require to understand of the CSV, and this is CSV means comma separated value file model. This is a CSV. ये CSV का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मॉडल. कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मॉडल का मतलब क्या है, उस चीज को समझते हैं कि कहने का मतलब है जब आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में होगा. कुछ जो डेटा या रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं वो कैसे रहता है. जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज यू हैव अ फाइल, द फाइल नेम इज suppose file name is data. File name is data, and then you have to store the data in the forms. What is the forms of the data? Suppose you just write first one, the data is first name, then next one is last name, then next one suppose it's email. Okay, this is the format of data. You store on the data. Suppose someone is name is Amit. You have to write a first one, type the Amit. Its last name is suppose Amit Singh and SINGH, the name of this last name, and email address is amit@gmail.com. So this is the one person's data. Suppose another person is Amit Kumar. So suppose another is Mohit, then Kumar, this is the second one, and next one is its email address is kumar@redditmail.com, @redditmail.com. So on the data process are storing on the way. You require to show your data or store your data in form of the comma separated mode. How you have to store the data? In this way, you have your first name is Amit and Amit, then comma, use of the comma, and Singh, you have to write up Singh, then @ email is amit@gmail.com. This is the one person's data. In this way you display the data. It format in this way we say the data is in the form of the CSV, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मॉडल ऑफ डेटा. CSV क्या काम करता है, आपका जो डेटा है उसको हर रो कॉलम के डेटा को सेपरेट करने का काम करेगा. कॉमा से सेपरेट करते हुए डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डेटा आपका फाइल के अंदर स्टोर होता है, इसी को CSV मॉडल कहते हैं. तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की. हाउ यू हैव टू राइट ऑन द प्रोग्राम. अब प्रोग्राम कैसे लिखोगे उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो you start at first the program and you have to import of the CSV. You have to import the CSV. CSV import करोगे. क्यों करोगे? क्योंकि ये ऑलरेडी आपका इसकी लाइब्रेरी के अंदर है. And you start with open names.csv in the right mode as of the CSV underscore file. Means you have to make on the object. आपने क्या काम किया? एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम किया. As you know, in the previous options we also make the this object in this another way. तो हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं. CSV underscore, then you have to use the file equal to you use on the open, and then you have to write out the names dot CSV, then which mode you required in the right mode, so you have to made on this way. ये तो दूसरा तरीका ये है. ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी बन जाएगा. So you can make on your object in this way. So here we are using different mode, just like with opens names.csv in read mode as a CSV file. यानी इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? CSV file, CSV underscore file. So we start at first. We require to make on the one variables required to store the data. अब हमें पता है कि क्या हो रहा है. जब भी हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास मेमोरी कॉन्सेप्ट होते हैं. तो दो तरह की मेमोरी हम यूज करते हैं. एक तो हम यूज करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. दूसरा हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी. वी हैव टू यूज ऑन द सेकेंडरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी की जहां बात होती है तो वी आर यूजिंग अ हार्ड डिस्क.
HDD इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के अंदर क्या बना है, जैसे ही आपने ये किया names.csv नेम की एक फाइल क्या बन गई आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है। अब ये फाइल क्या काम करेगी, एज यू नो इट्स स्टोर द डेटा। अब डेटा को स्टोर करने का काम करेगी, यानी इसके अंदर कोई, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर पहले से कोई ये फाइल है और इसके अंदर डेटा ऑलरेडी पड़ा है और तभी इसको हम रीड मोड में ओपन करने का काम कर रहे हैं। सो वी हैव टू ओपन इन द रीड मोड। अब हमारा काम, अगला काम क्या है कि अगर हम इसके डेटा को, यानी इस names.csv नेम की फाइल के डेटा को अगर मॉनिटर में दिखाना चाहते हैं, वी वांट टू शो द इंफॉर्मेशन इन मॉनिटर, अगर मॉनिटर में दिखाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर्ड द डेटा टू स्टोर इनसाइड ऑफ द रैम। तो हमें डेटा क्या करना पड़ेगा, रैम में स्टोर करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने csv_reader नेम का एक वेरिएबल बनाया। csv_reader वी हैव टू मेक ऑन दिस वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है, तो csv.reader inside of this parenthesis csv_file, यानी ये ऑब्जेक्ट जिस फाइल को इंडिकेट कर रहा है उस फाइल का डेटा कहां पर आएगा, इसके अंदर csv_reader नेम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ओके, इट्स कम इनसाइड ऑफ दिस। Okay, next one. This is of line. This is another object and it's make of information line by line. अब देखो क्या है कि जो information है वो line by line कहाँ आनी है, आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होनी है। चलो ये डेटा आ चुका है, अब इस डेटा को कहाँ जाना है, इधर जाना है, मॉनिटर में दिखाना है। तो how it's display the data? It display the data csv_reader. This is the variable name. इस वेरिएबल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो लाइन बाय लाइन आके कहाँ डिस्प्ले होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। Suppose first information is first name and the next one is the last name and next one is email address. It's displayed to the monitor screen. पहली लाइन में ये जो डेटा नेम की जो आपकी फाइल है, suppose we are talking about of किसकी बात कर रहे हैं, names.csv की कर रहे हैं, तो इसकी जगह डेटा की जगह names.csv फाइल में तो फाइल के अंदर names.csv नेम की फाइल के अंदर ये, तो ये डेटा क्या होगा, पहली लाइन यहाँ पे आ गई। अब दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन कम्स, द व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट लाइन इज अमित, देन लास्ट नेम इज सिंह, देन ईमेल एड्रेस इज amit_gmail.com। इट्स डिस्प्ले। नेक्स्ट वन इज मोहित, देन कुमार, देन it's kumar_redifmail.com। this it's email address। by and by this information are displayed। तो एक एक करके जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है, लाइन बाय लाइन आती है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या काम करता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस डेटा को, यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर की स्क्रीन पे लाइन बाय लाइन क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। इट्स द वर्क ऑफ दी CSV फाइल। CSV फाइल क्या काम करता है, इसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटिंग वैल्यू फाइल मॉडल। तो कॉमा के फॉर्मेट में कॉमा से हर फील्ड के डेटा को रो में कॉमा के थ्रू क्या करता है, सेपरेट करते हुए आपको डिस्प्ले करता है। ओके।